حتیٰ کہ حاملہ عورت کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کی احتیاطیں اس عورت کے لیے جس کے ناپاکی کے دن ہوں، اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں، اس مرد کے لیے یا اس جوان کے لیے جس کی ابھی مونچھیں داڑھی نکل رہی ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اس بوڑھے کے لیے جس کی زندگی بڑھاپے میں چلی گئی ہو، اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہیں، حتیٰ کہ سونے والے کے لیے کیا احتیاطیں، جاگنے والے کے لیے کیا تدبیریں، یہ ساری کی ساری سائنس نے لکھی ہیں۔ ورنہ یاد رکھنا، اب لفظ سنیے گا ایک اللہ کے ولی کی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے الفاظ سنیے گا۔ فرمایا یاد رکھنا، اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی، کیا لفظ فرمایا؟ اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی تو اللہ پاک تمہاری اور تمہاری تمام قوم پہ ایسے ایسے عذاب بھیجے گا جن کو چنتے چنتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سال میں آپ نے یہ فرمایا، اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی اوپر سے بلائیں ٹل آ رہی ہیں، ایسے جیسے کہ تسبیح کے دانے گرتے ہیں، تسبیح ٹوٹتی ہے اور تم ان کو چنتے چنتے بوڑھے ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ لگ گئے اعمال میں، لگ گئے کہ نظام ہے، بڑی بڑی ہستیاں اس کو لے کے چلی ہیں، چونکہ امت میں عمومی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہمیں ہر طرف سے آگاہی مل رہی ہے ہر چیز کی، اس چیز کی آگاہی نہیں ملی، اطلاع نہیں ملی کہ سورج گرہن میں میرے حضور کا عمل کیا تھا، حضور کے ماننے والے، کملی والے کے ماننے والوں کا عمل کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا۔ قلعہ معلّہ، لال قلعہ کو قلعہ معلّہ کہتے تھے، لال قلعہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک عمل ہے جس کو حروف صوامت کہتے ہیں، قرآن پاک کے 29 حروف عربی کے قرآن کے، ان میں 13 حروف وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے، اس پہ ایک عمل ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو 543 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 4543 543 بار پڑھا جاتا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ حروف صوامت 13 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے، 13 حروف کو اگر ملایا جائے، ان 13 حروف کو، تو وہ 13 حروف بنتے ہیں احدر سستا کلمو، الف ہا دال را سین صاد طا عین سس تا کل کاف لام میم واو ہا، بس یہ کتنے حروف بنے؟ 13 حروف، یہ 13 حروف بنے، اور ان 13 حروف کا پورا نظام ہے۔ جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے، نئے پہننا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے، ایک شرط، دوسری شرط سن لیں، پاک ہو، باوضو ہو، اور اس دوران 543 مرتبہ احدر سستا کلمو، یہ ایک دفعہ بنا، یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا، اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے آزموتا ہے۔ جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے۔ اب اگلا عمل ہے تالے والا، چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے، تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں، اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو، اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ، صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اس پہ۔ کتنی بار؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کمال چیز۔ یہ سورۃ کوثر یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی زندگی میں تالے لگے ہوئے ہیں نا، یہ تالا اس کے لیے ہے۔ کہتا ہے میرے رزق میں تالے،
मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरी रोजी पे ताले लगे हुए हैं, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है और बेआबाद हो गई है और परेशान हो गई है और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं। ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है। सिर्फ 7 बार आपने ताला इस पे सूरत कौसर पढ़नी है। वो कैसे? सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है, एक बार सूरत कौसर और एक तस्बीह किसकी? इन्न शानिअका वल अब्तर, इसकी एक तस्बीह इन्न वल, इसकी एक तस्बीह दोहरानी है, और दोहराते हुए सख्त 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 और सख्त तसव्वुर अपने लगे हुए तालों का, वो रोजी पे लगे हैं, वो मुकद्दर पे लगे हैं, वो बख्त पे लगे हैं, वो सजदों पे लगे हैं, वो नेकी पे लगे हैं। नेकी करने को दिल चाहता है, नहीं आ सकता। तस्बीह पढ़ने को दिल चाहता है, नहीं पढ़ सकता। नेकी की तरफ कदम उठने को दिल चाहता है, नहीं उठ पाते। जो ताले लगे हैं ना, उनका तसव्वुर करके एक बार सूरत कौसर और 100 बार पढ़ना है इन्न शानिअका वल अब्तर, बस। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन्न शानिअका वल अब्तर। अवल आखिर दरूद पाक। तो ये अमल अवल आखिर दरूद पाक, 7 बार सूरत कौसर, और हर बार सूरत कौसर में एक तस्बीह पढ़नी है इन्न शानिअका वल अब्तर। और उसके बाद आगे क्या करना है? आगे ये करना है, ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना, और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं, कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिया तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। अब सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज गिरहन के दौरान कितनी बार? सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है, 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अवल आखिर दरूद पाक। सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाहुस समद को कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें, फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। बस मेरे अमल खत्म हो गए। पहला अमल कौन सा बताया? हरूफ सवामित का। दूसरा अमल सूरत कौसर और ताले वाला, और तीसरा, बस ये 3 अमल। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। 40 दिन के अंदर अंदर यह सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दे, जब भी दे दे।
जितने हरूफ है ना इसके 543 हैं, किसके अदद हैं, अदद हरूफ समामत के अदद कितने हैं 543 रुपए या इतने का खाना या इतने की मिठाई या इतने की शीरीनी या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, ज़रूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दें। अगला है ताले का सदका, ताले का सदका। इसमें इसके मलफूफी अगर मैंने अदद निकाले हैं बाकायदा, इसके अदद निकालने के बाद जो इसके अदद बनते हैं वो सिर्फ 97 बनते हैं। गई उनकी गिरह को ये गिरह देने के लिए भी है, ये गिरह खोलने के लिए भी, ठीक समझ गए, ये गिरह देने के लिए भी है और ये गिरह खोलने के लिए भी है। वैसे उसूलन उस्ताद अपने गुर अपने पास रखते हैं, ये उस्तादी गुर है। सूरज गिरहन हुई 543 बड़ा ध्यान तवज्जो, एक एक लफ्ज पे डूब कर पढ़ना है, ध्यान तवज्जो, एक एक लफ्ज पर डूब कर पढ़ना है। मैं आपको 3 अमल बताऊंगा, आप तीनों में से तीनों कर ले, कोई एक कर ले, आपको जो सहूलत हो। मैं आपको 3 अमल बताऊंगा, 4 अमल बता दूंगा, उनमें जो आपकी जो सहूलत हो। ये उस्तादी गुर हैं और ये बताए नहीं जाते, उस्तादी गुर हैं, बताए नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना, अल्लाह करे आइंदा भी ऐसे खैर फैलाता रहे, बरकतें फैलाता रहे। ये अमल आपने करना है ध्यान से बैठ के इस 5 घंटे के दौरानिया के दौरान। एक तो ये अमल आपने करना है, क्या करना है, ये हरूफे सवामित का अमल, ये आपको मेरी तरफ से इजाजत है जी, ये मेरी तरफ से आपको इजाजत है। इसमें कोई चीज पूछनी हो तो इजाजत है। जब आप आमिल बन गए फिर दोनों चीजें आ गई। देखें कहीं भी आप महसूस करते हैं कोई चाल चलन ठीक नहीं, कोई इल्लत है, कोई जिल्लत है, कहीं भी कोई बदकिरदारी है, किसी चीज को छुड़वाना है, इसको पढ़ना शुरू कर दें। कई लोगों मुझे बताया, उस दिन भी एक साहब बता रहे थे कि मेरे एक जानने वाले थे, को बैठे हैं हरूफ समामित पढ़ने वाले, एक साहब थे हरूफ समामित, उन्होंने बताया कि मैंने पढ़ा और उसकी नशा छूट गया, उसकी ये आदत छूट गई, उसकी बुराई बेशुमार, मैं तो साल से बता रहा हूं। और इसी तरह एक तो उस पे गिरह लगानी है और जहां गिरह लगी है खोलने के लिए भी है। अब हम आगे चलते हैं, ये अमल समझ आ गया। क्या कह रहे, पूरी दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया को इजाजत है, पूरी दुनिया हमारे साथ ऑनलाइन है और पूरी दुनिया को मैं इजाजत दे रहा हूं। और मेरी इजाजत सिर्फ इस मजमे के लिए नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाने के अपकरी की फेसबुक की रीच करोड़ों की महाना है, पूरी दुनिया सुनती है और पूरी दुनिया को इसकी इजाजत है। अब अगला अमल है ताले वाला। छोटा सा मेरे पास ताला है, ताला कोई सा ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, और इसकी चाबी आपने हमेशा निकाल के रखनी अमल के दौरान। अभी चाहे चाबी रहे, अमल के दौरान इसकी चाबी ना हो, और वो चाबी आपने इलहदा और ताला इलहदा, चाबी इलहदा और ताला इलहदा, सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है इस पे। कितनी बार? तरीका मैं बता देता हूं, कमाल चीज। ये सूरत कौसर ये किसके लिए है? जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरी रोजी पे ताले लगे हुए हैं, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है और बेआबाद हो गई है और परेशान हो गई है और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं।
ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है, और सिर्फ 7 दफा सूरत कौसर पढ़नी है। तरीका मैं बताता हूं आपको। और ये अमल जो इस दौरान सूरज ग्रहण के 5 घंटे 25 मिनट का दौरानिया है, 5 घंटे और 25 मिनट का दौरानिया है। 20 अप्रैल जुमेरात को सूरज ग्रहण सुबह 6:34 पर, और खात्मा जो है 10:36 और 36 सेकेंड, 10:56 पर इसका खात्मा होगा। कब? 20। और वो कब है? कब है? बताओ भाई, कब है? माशाअल्लाह। सिर्फ 7 बार आपने ताला इस पे सूरत कौसर पढ़नी है। वो कैसे? सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है, एक बार सूरत कौसर और एक तस्बीह किसकी? इन्न शानिअका वल अब्तर, इसकी एक तस्बीह, इन्न हवल, इसकी एक तस्बीह दोहरानी है। और दोहराते हुए सख्त 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 और सख्त तसव्वुर अपने लगे हुए तालों का, वो रोजी पे लगे हैं, वो मुकद्दर पे लगे हैं, वो बख्त पे लगे हैं, वो सजदों पे लगे हैं, वो नेकी पे लगे हैं। नेकी करने को दिल चाहता है, नहीं आ सकता। तस्बीह पढ़ने को दिल चाहता है, नहीं पढ़ सकता। नेकी की तरफ कदम उठने को दिल चाहता है, नहीं उठ पाते। जो ताले लगे हैं ना, उनका तसव्वुर करके एक बार सूरत कौसर और 100 बार पढ़ना है इन्न शानिअका वल अब्तर, बस। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन्न शानिअका वल अब्तर। अब आखिर दरूद पाक। टेक लगाने वाले जाग रहे हैं, टेक लगाने वाले खास तौर पर जाग रहे हैं। यह ताले का अमल, ताले खोलने के लिए कमाल अमल है। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़ी बाकमाल हस्तियों के यहाँ इस ताले वाले अमल को बाकायदा एहतमाम से किया जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना भी उन्हीं सआदतों में शामिल है जो मखलूक की कदम कदम पे खिदमत भी करता है और कदम कदम का ख्याल भी रखता है। 50 रुपए, ताले के 50 लगे हैं, 50 रुपए में आपका काम हो जाए। मुझे बताओ तो सही, बकरे चाहिए, इतने मुर्गे चाहिए, मुझे आज भी एक साहब इतनी दालें चाहिए। वो कहें जी 7 जिन्सें होंगी और हर जिन्स के लिए 11 बोरियां गंदम की, 11 मकई की, 11 चावलों की, 11 बाजरे की, 11 फलां की, 11 फलां की, और उसमें अक्सर दालें थी जो घर में इस्तेमाल में आती थी। ये होंगी। फिर ताला ले आए, फिर ताले के अमल करूंगा, चाबी इलादा रखवाऊंगा, ताला इलादा रखवाऊंगा। 50 रुपए में तो आपका काम हो गया और खुशी मुझे हो रही है। मैं परेशान नहीं हूं, नादिम नहीं हूं। मैंने एक दफा थक हार के ये किया कि मैंने कहा बाहर लिख के लगा दो, जिसने मुझसे इमरजेंसी मुलाकात करनी है 10,000 रुपए फीस है। कौन आएगा? बाहर लिख के लगा दो। जो आता था मैं कहता था मैं मजबूर हूं। मैंने कहा ये मजबूर नहीं है जो बैठे हैं सारे, जिन्होंने 6 महीने साल पहले बेचारों ने टेलीफोन कर करके वक्त लिया है। और खास तौर पे खवातीन ने आके रोना शुरू कर देना है, और कोई बाहरले मुल्क ने आके उसने अपना ईगल वाला पासपोर्ट दिखाना है। मैं इतना दूर से आया हूं, इनका क्या करूं? मैंने क्या किया, कागज पे लिख दिया और नीचे लिखा ये रकम ट्रस्ट में जाएगी, मैं खुद नहीं लूंगा कि मैंने आज तक फीस नहीं ली। अच्छा 10,000 रुपया जो लिखा, जो आए कल नहीं, मसला ही कोई। आखिर कागज मैंने उतारा, मैं उतारो इसको जल्दी करो।
تو اس عمل کے لیے اگر میں تالے کے عمل کے رسالے میں صرف اشتہار دے دوں کہ میں یہ عمل کراؤں گا، ہر آنے والے کے لیے 10,000 یا 5,000 روپے لوں گا، چلو 5,000 ہی لگا لیں، مریا کٹیا 5,000 بھی لگا لیں، اور 5,000 کے لیے اگر 1,000 بندہ بھی آئے، کتنے پیسے بن گئے؟ 5 لاکھ۔ کیوں 5 لاکھ کہاں بنے؟ کچھ کہتے ہیں 50 لاکھ بنے۔ 5,000 بھی اگر میں کر دوں اور کہوں صرف 1,000 بندہ آئے تو کتنے پیسے بنیں گے؟ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ 50 روپے میں آپ وہ عمل کر لیں گے جس کے لیے لوگ اتنا کچھ لیتے ہیں۔ چلو آپ میں سے بتائے، کسی نے کسی عامل کو، نام نہیں بتانا کسی کا، زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے کیا چیزیں دی، مختصر بتائیں۔ 5,000 ٹھیک ہے، اور 70,000 اور بولیں جلدی کریں، نام نہ کسی کا بتائیں۔ بکرے کتنے؟ 2 بکرے، ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ 30,000 60,000 5,000 2.5 لاکھ 2 سال میں 11 لاکھ، ہر ماہ 5,000 جی 40,000 بولیں، 30,000 جی بولیں جی، بے حساب، اور بتائیں، مختصر بات کر، بٹھا دو اس بندے کو، ہاں جی 5 یا 6 لاکھ، ہاں 7,000 ایک بکرا 30,000، سمجھ نہیں آئی بھائی، شور ہے اونچا بولو، ہاں میری عمر اتنی نہیں ہے جتنے میں نے پیسے خرچ کیے ہیں، 100 گلاں دی کوئی گل، اور بس ختم، بس دیکھو عمومی بات ہے۔ ایک بزرگ نے نا مرشد کی شرائط میں کچھ چیزیں لکھی، آج وہ بھی بتاتا چلوں، اچانک بات یاد آئی۔ مرشد کی شرائط میں کہا جس کو مرشد بنانا ہو، جہاں اور چیزیں ہیں وہاں یہ ہو کہ مرشد خود مالدار ہو۔ نے پوچھا کیوں؟ کہا خود بھرا ہوا ہوگا تو تیری جیب پہ نظر نہیں ہوگی، ہاں خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک پیر صاحب ہیں جو گولڈ لیف کی ڈبی نہیں چھوڑتے اور چھج بھی نہیں چھوڑتے۔ چھج سمجھتے ہیں؟ دانوں والا، گولڈ لیف کی ڈبی نہیں، 5 روپے بھی 10 روپے بھی۔ اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اربوں خربوں ان کے بینکوں میں، اور سونے اور مال اور چیزیں، اور امریکہ میں گھر اور فلاں نہیں، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور کہا کہ پیر وہ بناؤ جس کی جیب بھری ہو اپنی، ایک جوان بھی ہو۔ پوچھا کیوں؟ کہا پیر سے مناسبت بھی ہوگی، فیض بھی ملنا شروع ہوگا، فوت بھی ہو جائیں گے۔ ویسے تو خدا ہی جانے، اکثر بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، لیکن یہ عمومی بات جو لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ پیر ہو، چلو اس سے آپ ہر وقت مل نہیں سکتے، اس کو دیکھ تو سکو، اس سے سامنے فیض تو پا سکو۔ ہر وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، جیسے الحمدللہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، یا سکرین میں بھی آمنے سامنے ہے، پوری دنیا میں لوگ تسبیح خانے سے نفع پا رہے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کا 50 روپے میں کام ہو گیا۔ کہتے ہیں تو میں فیس رکھ دیتا ہوں اور شرط رکھتا ہوں جو یہاں جمع کرائے گا تو اس کا عمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، شرط رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اجازت تو ہے بڑوں کی میرے پاس، اور اجازت کے بغیر یہ عمل نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے، اور میری حیثیت ڈاکیے کی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اب میں عمل پھر دوہرا رہا ہوں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، ٹھیک ہے؟ صرف 7 بار سورت کیا پڑھنی ہے؟
और सख्त तसव्वुर हो अपनी तालों का कि जिंदगी में कहां कहां ताले लगे हुए हैं। मैं एक बात बताऊं, यहां तक तो है ऐसे ऐसे अमल हैं ताले लगा के समंदर में डाल दिए, दरिया में डाल दिए, अंधे खूह में डाल दिए, पुरानी कब्र में डाल दिए, ना ताला खुलेगा ना तेरी जिंदगी के ताले खुलेंगे। पर मैं बड़े यकीन से कह रहा हूं कि मुझे अपनी जात का यकीन नहीं, रब के कलाम का यकीन है, सूरत कौसर का ये अमल ताले तोड़ देता है इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है, जिसकी नस्लों में ताले लगे हैं कि वो अपाहज हैं। मैं ऐसे ऐसे अमल जानता हूं, मुझे इल्म है कि बस कर दे, उनकी नस्लों में आप माजूर बच्चे पैदा होंगे, सारी उम्र माएँ और बाप बेचारे सिसकते रहें ताकि इनको ज़हनी अजियत दें। एक बात बताऊं, इंतकाम बाज़ औक़ात औलाद के जरिए लिया जाता है। जादू का एक अमल बता रहा हूं, औलाद के जरिए इंतकाम लिया जाता है। ये ठीक है, क्यों? औलाद होती है प्यारी, औलाद दिल और जिगर होता है। औलाद को ऐसे रोगों में, ऐसी मुसीबतों में मुब्तला करा दिया जाता है कि बंदा औलाद के लिए खुद खुल जाता है घुल नहीं जाता, घुल जाता है। ये तालों को तोड़ने का अमल इंशाअल्लाह आइंदा साल भी अल्लाह के फजल से हम सूरज ग्रहण का अमल करेंगे। आइंदा साल भी आप पहले से ही फिक्रमंद रहिएगा कि तस्बीह खाने अबकरी की तरफ से कब ऐलान आए। अगर ना आए तो हमें बार बार फिक्रमंद करना है। क्या करना है? जैसे मैं बाज़ बात चीज़ें भूल जाता हूँ, आप मुझे बताते हैं जी आज या जलीलो या जमीलो का अमल नहीं हुआ, हमने किया, आपने मुझे बताया, और मैं ये नहीं मैंने कहूँ कि मुझे पता था, मैंने एतराफ़ किया कि मैं भूल गया, भूल जाता हूं। तो ये अमल अवल आखिर दरूद पाक 7 बार सूरत कौसर, और हर बार सूरत कौसर में एक तस्बीह पढ़नी है, इन नशानिया का हुवल अब्तर। और उसके बाद आगे क्या करना है? आगे ये करना है ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना, और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं, कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिया तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। ठीक जी, बिस्मिल्लाह पढ़नी है हर दफा, 7 दफा सूरत कौसर, 7 दफा बिस्मिल्लाह, अवल आखिर 3 बार दरूद शरीफ। ठीक है जी, आगे अमल में चले। देखें जी, अब कहें एल्फी डाल के दफना दें, ना करें, बस खुला दफना दें। जितना ज्यादा सवाल करेंगे उलझ रहेंगे जी। अच्छा जी, और जी दरिया में फेंक दें, समंदर में फेंक दें, ठीक है। अच्छा, मैंने इन अमल के सदके भी बताने हैं आपको, अमल सुन लें पहले, सदके भी बताने हैं। ये हो गया, कमाल अमल है। मैं थोड़े फायदे बता रहा हूं। जो हरूफ सवामित का अमल बताया है उसके कमाल अमल है कि वो गिरहा खोलता भी है, गिरहा लगाता भी है। और ये अमल जहां ताले लगे हों जिंदगी में, नस्ल दर नस्ल ताले। मुझे बंदा कहने लगा कि हमारे यहाँ हमारे नाना कहते थे कि उनके दादा कहते थे, हमारे नाना कहते थे कि उनके दादा कहते थे कि हमारे फलां ने हमारे ऊपर ताले वाला अमल कराया था कि तुम्हारी जिंदगी में ताले लगा दिए। कहा आज तक अपना घर नहीं मिला, दर दर के किराए की ठोकरें खा खा के थक गए हैं, और ये ताले और ये बंदिशें और ये जगह और ये जगह और ये जगह, ताले ये ताले, ताले ये ताले, ताले ये ताले। अल्लाह हाँ, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, हिफाजत फरमाए।
اب सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज गिरहन के दौरान कितनी बार? सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है। 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अवल आखिर दरूद पाक। सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाह उस्मत को कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें। फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। बिन देखे सौदे हैं यहां। साइंस कहती आओ अगर मुझे समझना है तो रूहानियत को समझो। क्यों? साइंस बिन देखे सौदे। उसने कहा जी ये न्यूटन का कानून है, ये फलां का कानून है, ये फलां का कानून है। उसने कानून बना दिए, उसके कानून आंखें बंद करके। और कमली वाले ने जो कानून बनाए हैं और कमली वाले के आल और असहाब ने जो निज़ाम बनाए हैं और उनके मानने वाले बड़ी बड़ी हस्तियां औलिया ने जो निज़ाम बनाए हैं, तो उसमें भी हमारी अक्ल नहीं। हाँ, कोई बताने वाला मुस्तनद आदमी हो, यह लाजिम है। हर किसी की बात नहीं, बताने वाले की मुस्तनद कोई स्टेज हो, मुस्तनद कोई सोर्स हो, मुस्तनद कोई जरिया हो और मुस्तनद कोई निज़ाम हो। तस्बीखाना इंशाअल्लाह मुस्तनद चीजें बताता है, ऐसी चीजें जिनकी सनद है, जिनके हवाले हैं और जो सदियों से निजाम चला आ रहा है कि तस्बीखाना। गौर से ये लफ्ज मेरा सुने, जरा गौर से सुनिएगा। तस्बीखाना वजीफे बनाता नहीं, बताता है और उसकी सनदे हवाले आपको सारे नेट पे मिलेंगे, मौजूद है। बस मेरे अमल खत्म हो गए। पहला अमल कौन सा बताया? हरूफ सवामित का। दूसरा अमल सूरत कौसर और ताले वाला। और तीसरा, बस ये 3 अमल। बताओ कि मुश्किल है? मुझे एक बंदा कहने लगा कि सूरज गिरहन का मेरे पास एक अमल है और बहुत जबरदस्त अमल है, मैं वो लोगों को बताता हूं, आपको भी बताता हूं कि आप सखी हैं, आपको ही बताता हूं। कहने लगे शलवार नहीं पहनी, धोती बांधनी है, कमीज पहननी है, सर पे पगड़ी बांधनी है, उसका शिमला कमर तक हो, उसको इतना बड़ा हो कि इस कमर में 3 बल देने हैं, 3 बल, इतना बड़ा शिमला। शिमला कहते हैं जो पीछे कपड़ा, उसको 3 बल देनी है। सुरमा लगाना है, इस्मत सुरमा और असली मिले वो लगाना है। खुशबू लगानी है, खुशबू लगाने के बाद नाखून के ऊपर खुशबू लगानी है, जिस्म पे भी नाखूनों पे भी खुशबू लगानी है। खुशबू लगाने के बाद 2 बड़े स्टूल हों, बड़े कम से कम 5 फुट ऊंचे हों। एक टांग वहां रखनी है, एक टांग वहां रखनी है और जितना अपनी टांगें फैला सकते हैं खड़ा होना है। और आपको तकलीफ होना जरूरी है, अजियत हो, टांगे बंदा कितनी देर खड़ी कर सकेगा। और इस दौरान 3300 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़नी है। सुबह तैयार हो मैं अभी स्टूल बनवाता हूं, वरना स्टूल प्लास्टिक के मंगवा लेते हैं, चलो बड़े ना हो, छोटे गुजारा कर लेंगे, तगड़े हो। अल्लाह अकबर। उम्मत के लिए आसानियां, इन्नमल उसरि युस्रा, उम्मत के लिए आसानियां, इंसानियत के लिए आसानियां पैदा करो। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरे पास एक फार्मूला नुस्खा है और उस नुस्खे में शेर की कान की मैल और शेर की मूछ का बाल उसमें डलता है, बड़ी तासीर है, बड़े फायदे हैं।
शेर की कान की मैल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खैरियत से, क्या हाल है अब्बा जी? ठीक ठीक है। हमने बब्बर शेर साहब जरा कान इधर करेगा, मैल नहीं। और बेटा आ जाओ, बिस्मिल्लाह। कान ऐसे की, उन्हें कहा इधर आ, जरा बैठ तो सही। उन्हें कि एक मूछ का बाल भी थोड़ा सा आपका चाहिए। उन्हें कोई मसला ही कोई नहीं है, जवान दी होंदी मच्छे। उन्हें कि शेर की मूछ का बाल। मैंने कहा एक मेरे पास भी टोटका है। क्या? मैंने कहा मगरमच्छ का पित्ता ले आए, मसला हल हो जाएगा। कहने का वो कैसे? मगरमच्छ का पित्ता कैसे? मैं कहा शेर की बाल के कान की मैल कहां से लाएंगे? अकल कर, खुदा का खौफ कर, उम्मत के लिए मुश्किलें ना बना। इंसानियत पहले ही दुखी है, लोग तो पहले परेशान हैं, लोग तो पहले ही बेचारे दुखियारे गम के मारे हैं। उनके लिए दुख और तकलीफें और बढ़ाए। 50 रुपए का ताला लिया, बाकी कोई ना फीस है ना कुछ नहीं, अब सिर्फ मुझसे सदके सुन लें। हाँ, मैं अच्छा किया याद करा दे। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले, जो आपने देने हैं। अभी अगर नहीं दे सकते, अपने मकाम पे इतकाफ के बाद जाके दे लें, कोई हर्ज नहीं। 40 दिन के अंदर अंदर यह सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दें, जब भी दे दें। जितने हरूफ है ना इसके 543 हैं। किसके अदद हैं? अदद हरूफ समामत के अदद कितने हैं? 543। 543 रुपए या इतने का खाना, या इतने की मिठाई, या इतने की शीरीनी, या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, ज़रूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दें। ये तो हरूफ समामत का सदका हो गया। अगला है ताले का सदका। ताले का सदका, इसमें 7 बार क्या पढ़ना है? सूरत कौसर, और 700 दफा इन्ना शानिया का। इसके मलफूफी अगर मैंने अदद निकाले हैं बाकायदा, इसके अदद निकालने के बाद जो इसके अदद बनते हैं वो सिर्फ 97 बनते हैं। 97। दूसरे लफ्जों में 100 रुपया सदका कर देना। कितने? अपने हाथों से सदका कर देना। हमारे यहां कोई संदूक सी नहीं है। तीसरी चीज क्या? सूरत इखलास। 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है, और 3 बार सूरत इखलास का सदका सिर्फ 50 रुपए है। बस ये आप कर लें। आप तीनों अमल कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों में से कोई एक कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों कर लें, लेकिन ध्यान वाले, तवज्जो वाले, दर्द वाले, इखलास वाले, डूब के। एक बात मैं आखिर में कहता चलूं, गौर से समझिएगा। आप सेहतमंद हैं, आपकी नस्लें सेहतमंद हैं, आपके पास रिस्क भी है, सवारियां भी हैं, घर भी है, दौलत भी है, ओहदे भी हैं, इज्जतें भी हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जाते सेकंड नहीं लगता, जाते मिनट नहीं लगता, मिनट नहीं लगता। मैं आपको नहीं सोच सकते कि मेरी आंखें आज भी खुल जाती हैं। परसों रात में मेरी आंख खुली, मैं थोड़ा सा सोया हूं, कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा सोया हूं, एकदम मेरी आंख खुली और हताए मेरे सामने आया, कहरमान मराश मेरे सामने आया, अंदियामान अदियामान मेरे सामने आया, गाजी अंतिप मेरे सामने आया। ओह, ये तुर्की के शहर हैं जहां मैं गया हूं। एक मैं पिछले साल सितंबर में गया था, एक मैं अभी फरवरी में गया हूं, एक मैं 2015 में गया था। ये जो अभी मैं फरवरी में गया हूं ना, हताए, जिसका पुराना नाम इंताकिया है तारीख में, हताए अदियामान, कहरमान मराश शहर का नाम है, गाजियान्तिप शहर का नाम है। मैंने ये शहर हंसते बसते देखे सितंबर में। मैं तारीखी शहरों में गया हूं, कोई तुर्की के तफरीही मकामात पे कहीं नहीं गया। मैं रूहानी और तारीखी दुनिया का दिल दादा हूं। हंसते बसते देखे, सिर्फ 1 मिनट। कितने मिनट? बस 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हर चीज खत्म हो गई। मीलों फैले हुए कब्रिस्तान है, या बिल्डिंगों के टावर के ढेर हैं, या हजारों से ज्यादा 1.25 लाख के करीब ऐसे टावर हैं जो रहने के काबिल नहीं है। नीचे से उन हजरात की नफासत देखें, मिजाज की नफासत देखें। एक टैंकर है, नीचे से पानी फेंक रहा है और ऊपर से क्रेन बिल्डिंगें गिरा रही है।
जो रहने के काबिल टावर 10-10 मंजिला 12-12 मंजिला उनको गिरा रहे हैं और वो पानी फेंक रहे हैं कि धूल ना उड़े। 1 मिनट के अंदर तो इज्ज़ मन तशाओ व तो ज़िल्ल मन तशाओ। कभी ना सोचिएगा मेरे पास माल दौलत चीजें मुल्क इक़्तिदार हुकूमत ओहदे, ना कभी सोचिएगा। मेरी मिन्नत है, दरखास्त है, इन दुआओं वाले लम्हों में अपने आप को दुआओं में लगा दीजिएगा। ये बड़ी बड़ी बलाओं मुसीबतों और परेशानियों को टाल देते हैं, ये बड़ी बड़ी बलाओं मुसीबतों और परेशानियों को टाल देते हैं। हा हा, करीम आपको हमेशा खुशियां दे और खैरें दे, अल्लाह आपको इज्जतें दे, अल्लाह तस्बीह खाने के ये फैज़ जारी रखे, अल्लाह मेरे जज्बे मेरी नीयतें सच्ची रखे। बहुत ज्यादा इम्तिहान है, आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है, शोहरत बहुत बड़ी आजमाइश है, 4 बंदों में शोहरत बहुत बड़ी आजमाइश है। आज इस आजमाइश में एक बहुत कम पार उतरते हैं लोग, अक्सर की कश्ती डूब जाती है। मैं क़यामत के दिन उस बंदे के पीछे हाथ बांधे होंगे, हाय क्या मंजर होगा, और कहा जाएगा इस बंदे ने अपना बैत वाला हाथ तेरे हाथ में दिया था, बता तूने इसके लिए क्या किया था। ओहो, बंदा तो अपना जवाब नहीं दे सकेगा, क्या जवाब देगा। अब मुझसे पूछे मेरे दिन रात कैसे गुजरते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि मरने से पहले मैं अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी कि मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था, उससे पहले दावा नहीं कर सकता। मेरे लिए दुआ किया करें। अगर मुझसे दुआओं की उम्मीद है ना, मैं भी दुआओं का मोहताज हूं, इसलिए मैं आपको अमल पे लगाता हूं, किसी को नक्श पे लगाता हूं, किसी को रूहानी जानी सारों के अमल पे लगाता हूं, किसी को हामीम लायुन सारून पे सबको लगाता हूं, या हाफिज या सलाम पे सबको लगाता हूं। और कितने बेशुमार है उनको मैंने खास टारगेट दिए हुए हैं, रूहानी अमल दिए हुए हैं, ये इसलिए दिए हुए हैं। और माशाअल्लाह मेरे जानिसार मुखलिसीन हैं, बहुत मेहनत से करते हैं। आए हम एक तस्बीह हमने पढ़नी है आयत करीमा की आज के अमल में, और पहले गौर से सुन लें। आपने बचपन में एक बात सुनी होगी कि जब भी मुसीबत अचानक आ पड़े बंदे इकट्ठे होकर आयत करीमा पढ़ो, है जब भी मुसीबत अचानक आन पड़े बंदे इकट्ठे होकर आयत करीमा पढ़ो, 1.25 लाख आयत करीमा का निकालो। आपने सुना होगा, और ये सुना नहीं है, यह हकीकत है कि आयत करीमा ऐसे बलाओं मुसीबतों परेशानियों को। मुझे सिंध में एक हिंदू आमिल मिला, मुझसे कहने लगा आपने मुसलमानों को नहीं रोकते, ये मेरे पास आते हैं काले जादू के लिए, और जब मुझे कोई मुश्किल होती है मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ। कहा जब मुझे कोई मुश्किल होती है मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ। मुझे एक साहब ने बताया, मुझसे कहने लगे मुझे सुल्तान रही अदाकार ने एक बात बताई। एक फिल्मी दुनिया के एक बंदे, तस्बीह खाने में तवाइफों की दुनिया बहुत आती है, फिल्मी दुनिया बहुत आती है, शोबिस की दुनिया बहुत आती है तस्बीह खाने में। तो मुझे एक फिल्मी दुनिया के पुराने बाबे ने बताया कि मेरे सुल्तान राही के साथ मेरी जिंदगी गुजरी है। कहा सुल्तान राही जो है जब बैठता था तो जेब से तस्बीह निकाल लेता था और आयत करीमा पढ़ता था। मैंने कहा बाबे, उसने पंजाबी में की पढ़न दे हो, उसने कहा कोई पल्ले नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, मैं अल्लाह से एक तो शहादत की मौत मांग रहा हूं और उसको शहादत की मौत मिली, और दूसरा मैं अल्लाह से कह रहा हूं कि मौला तेरे पास जब आऊं ना, मुझसे मेरी पिछली जिंदगी का सवाल न करना, मैं तेरे सामने आयत करीमा सामने कर दूंगा, मेरी पिछली जिंदगी का सवाल न कर। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वुसअतों का ख्याल है,
पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इससे फिर भी शौक विसाल है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। और यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। हर वक्त जिक्र व फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। आयत करीमा, आयत करीमा, आयत करीमा कमाल कमाल चीज है। मुझे 1971 की ये जो जंग हुई थी उसमें कैदी थे, 1 लाख के करीब, 90,000 के करीब कैदी थे। मुझे एक बाबा मिला, मुझे कहने लगा कि मैं वहां जेल में कैद था और कहा कि मेरे पास सिर्फ आयत करीमा थी। मुझे कोई अजियत नहीं देते थे, मेरा एहतराम करते थे, मेरी इज्जत करते थे, बेहतरीन खिलाते थे। और सब कहते थे पीछे से इसका कोई ताल्लुक है, वहां से सिफारिश आती है, और हमारा हाल यह है, इसका हाल यह है। और देने वालों को भी पता नहीं था क्यों दे रहे हैं, और मुझे भी पता नहीं था कहां से आ रहा है। और मैं मौज मेले में और ठाठ से जेल गुजार के आया कि मेरे पास आयत करीमा थी। मुझे एक कैदी ने बताया। लोग तो मुझे अपना हाल सुनाते हैं आके। हम तो बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल में अटक जाएं, किसी नाकामी में भटक जाएं, किसी दलदल में धंसे जाएं, कोई घर में बीमारी तकलीफ, कोई मुश्किल परेशानी, कोई नाकामी, कोई उलझन हो, तो मिल बैठ के फिर आयत करीमा पढ़ें। तो आज क्यों ना मिल बैठ के आयत करीमा पढ़ें। रमजान की मुबारक रात है, रमजान की मुबारक रात है, और रमजान की मुबारक साथ है, और एतकाफ करने वालों, अल्लाह के मनाने वालों का मजमा है, और परदेशियों का मजमा है। परदेशियों के साथ तो मेरे रब की नमाजें भी रियायतों में आ जाती हैं, और मांगने वाले गिड़गिड़ाने वालों का मजमा है। तो सोचो तो सही, पूरी दुनिया हमारे साथ आज इस अमल में है, खवातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान। सोचो तो सही, अल्लाह को तरस नहीं आएगा। और आज कितनी मुरादें इंशाअल्लाह पूरी होंगी, और कितनी नाकामियां खत्म होंगी, और कितनी उलझनें खत्म होंगी, और कितनी जंजीरें टूट जाएंगी, और कितने रास्ते बंद खुल जाएंगे, और कितनी ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं या हर्डल्स और बैरियर्स हैं जो जिंदगी के हट के आगे सामने महकती और मुस्कुराती एक पुरबहार जिंदगी इंशाअल्लाह नजर आएगी। कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा। तो पढ़ें अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ, अव्वल आखिर 3 दफ़ा, और गिड़गिड़ा के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, सर झुका के पढ़ें। पूरी उम्मत की मुरादें, पूरी उम्मत के दर्द, अपनी मुरादें, अपने दर्द का तसव्वुर करके पढ़ें। फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं।
اللہم صلی علی محمد. میں نے آیت کریمہ والا پانی پہ دم کر دیا ہے. آپ کی چاہت تھی پانی جھوٹا، اللہ مجھے اس قابل بنا دے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، اللہ مجھے کامل مومن بنا دے. تو یہ آیت کریمہ والا دم والا پانی بھی اور جھوٹا پانی بھی آپ کو دے دیا. یہ پھر آپس میں بانٹ لیں گے آپ. ہاں، پچھلے سال شربت میں استعمال کر کے پلوایا تھا، بہترین طریقہ. ٹھیک ہے، یہ اس پانی کو آپ لے لیں. آیت کریمہ کا دم بھی کر دیا اور ساتھ جھوٹا بھی کر دیا. پچھلے سال شربت میں استعمال کر کے پلایا تھا، سب سے بہتر ہے. افطار بھی ہو گئی اور پانی بھی ہو گیا. مجرمانہ زندگی، مجرمانہ حاضری، اللہ کے حضور مجرم بن کے دعا مانگیں گے. وہ شہنشاہ ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. اب آپ پھر مجھے ذرا ایک دفعہ پھر دہرا دیں کہ میں نے آپ کو صدقہ کتنا بتایا ہے. 543 روپے، 543 روپے میں نے آپ کو بتائے ہیں. کس چیز کے؟ حروف الصوامت کے. اور 97 یا 93 کتنے بتائے؟ کتنے روپے بتائے؟ 97. اصل 97 ہے، لیکن میں نے 100 روپے بتائے. کس چیز کے؟ سورۃ کوثر کے. سورۃ کوثر کے عمل، تالے والا عمل کے 97 روپے اور 100 روپے، اور اس کے 50 روپے سورۃ اخلاص کے میں نے آپ کو کیا بتائے ہیں؟ ہاں، اس کا صدقہ جو ہے وہ 50 روپے ہے. ٹھیک ہے، دعا مانگے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت، ذلت اور قلت سے بچا. اے اللہ، ان اعمال کی سچی برکات ہمیں عطا فرما، ان اعمال کی سچی برکات ہمیں عطا فرما، ان اعمال کی سچی برکات ہمیں عطا فرما. ہماری نسلوں کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. ہمیں بے قدری، بے ادبی کی وجہ سے محروم نہ فرما. اے اللہ، ادب عطا فرما، اے اللہ قدر عطا فرما. جس کو ملا ہے ادب اور قدر سے ملا ہے، جس نے پایا ہے ادب اور قدر سے پایا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو ادب اور قدر سے بھر دے، ادب اور قدر سے بھر دے. اے اللہ، تسبیح خانے کو وسعت دے دے، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر آمین کہنے والے کی محتاجی دور فرما، پریشانی دور فرما، ناکامی ختم فرما، ذلتیں ختم فرما، اولاد کی طرف سے غم ختم فرما، صحت اور تندرستی کی ہمیشہ خوشخبریاں عطا فرما. آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کر دے. ذلت کی موت سے بچا، ذلت کی زندگی سے بچا، اور گرم قبر سے بچا. ٹھنڈی قبر عطا فرما اور ٹھنڈک زندگی اور دل میں عطا فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم. بیٹھے رہیں آپ.
کچھ 2-3 آپ سے درخواستیں کرنی ہیں۔ ایک تو رمضان والی کتاب میں نے عرض کیا کہ اس کو آخر منزل تک کون پہنچائے گا، لکھنا، اس کو کمپوز کرنا، کمپائل کرنا، سیٹنگ کرنا، چھپوانا میں نے خود ہے۔ اور دوسرا آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنی 40 یا 70 اصلاح و تجاویز لکھ کر استقبالیہ پر دیں۔ ہم سب سیکھنے کے محتاج ہیں، میں خود بھی، تو اصلاح و تجاویز اپنی لکھ کے ضرور دیں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح خانہ، گوشہ، درود محل، روحانی منزل، ان کی تاریخ لکھیں، کن کن مراحل سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ عید الفطر انشاءاللہ 6:30 بجے ہوگی۔ اور حرم مکی مدنی حرم کے کولر عرض کیے تھے پرانے، ان میں زمزم کی برکات، حرم کی برکات، اگر وہ تسبیح خانے کے لیے کہیں سے مل جائیں اس پہ ضرور توجہ کریں۔ لیلۃ الجائزہ میں ایک عمل ہے زبردست، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں وہ رات جس کی صبح عید ہوگی، اس کو چاند رات کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں۔ اس پہ ایک عمل ہے چھوٹا سا، ضرور کر لیجئے گا، یا تواب ہو یا کریم ہو، یا تواب ہو، گڑ گڑا کے ایک تسبیح، مولا بس و رمضان میں کمیاں اس پہ توبہ ہے اور تیری کریمی کی استدعا اور سوال ہے، انشاءاللہ اللہ کمیوں کو دور کر دے گا۔ اور جو رمضان کی سحری افطاری، شب برات، رمضان کی درمیانی رات 11-12 کی، 27ویں رات 9-10 محرم، اور اس میں اعظم 1.25 کروڑ سورت اخلاص کی 11 جمعراتیں، اور 11-12 ربیع الاول، اور 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں لنگر اور سبیل لگانا چاہتے ہیں وہ ٹیلی نار کے نمبر پر اعتماد کریں۔ اور کالی دنیا، کالے جادو، کالے روگ کا چلہ اور حضرت علی کی دعا کا چلہ 11 مئی سے شروع ہوگا۔ اس میں اعظم کا دم 28 مئی سے انشاءاللہ 28 مئی میں ہوگا اتوار۔